चलो, today's topic will start with circles. Everyone write down. Circles is defined as a locus of point P. Circles is defined as locus of point P which moves in a plane in such a way which moves in a plane in such a way which moves in a plane in such a way that its distance from fixed point that its distance from fixed point in the same plane is always a constant. In same plane is always a constant. याद रखो, it's always a constant. Here the fixed point is called as the center. Here the fixed point is called as the center of the circle. Here the fixed point is called as the center of the circle. And the fixed distance is called the radius. Fixed point is called the center of the circle and the fixed distance is called as the radius. Now, अगर समझो सेंटर दिया है ए कॉमा बी, समझो ओके, फिक्स्ड पॉइंट बोले ना, समझो सेंटर दिया है ए कॉमा बी, रेडियस दिया है आर. सो गाइस, सबसे पहले चीज, माय सेंटर रेडियस फॉर्म. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द सेंटर रेडियस फॉर्म का फॉर्मूला? इट विल बी x माइनस a the whole square plus y minus b the whole square equal to r square. This is called as the center radius form. x minus a, समझो a और b लिया, but we always take h and k. तो मैं बोलूँगा x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square, अगर मैंने a, b ले लिया. So this is your center radius form. अब मुझे एक बात बताओ, अगर समझो एग्जाम्पल लेते हैं, my center is 1,2 and my radius is 5. बोलो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x minus 1 the, everyone what is the equation? x minus 1 the whole square plus equal to 5 square. Lovely. So this is called as your center radius form. Anybody has any doubts here? So fixed point is center and fixed distance is always going to be the radius. तो लोगों ऐसा रहेगा, ऐसा मूव होगा. So remember this, it will move in such a way कि this is how it goes. अगर मैंने ऐसा बोला है, say for example, अगर ऐसा लिया है कि ये सेंटर है, तो ऐसा जाएगा. देखो, अगर ये बोला है कि मैंने इतना डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मेरा सेंटर होगा, ये मेरा सेंटर और ये मेरा रेडियस. अब अगर मैंने दूसरा लिया है, से फॉर एग्जांपल ऐसा ले लिया मैंने, और ये है मेरा सेंटर, ये है मेरा रेडियस, ये मेरा सेंटर, ये मेरा रेडियस, डिपेंड्स. सो इट कैन वेरी, बट फॉर अ सर्कल, जब लोकस देखो यहाँ से सब मूव होगा, देखो ये मूव हो रहा है, ये है मेरा लोकस, इट इज मूविंग इन दिस सर्कुलर मैनर. से फॉर एग्जांपल मेरा सेंटर तो फिक्स्ड है, वो सेंटर से मूव होने वाला है, तो फिक्स डिस्टेंस सेंटर से कोई भी सर्कल पे कोई भी पॉइंट पे अगर मैंने डिस्टेंस लिया, ये लिया, वो हमेशा रेडियस रहेगा. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम. सर्कल के लिए हमेशा एक ही रेडियस होता है, रेडियस कभी भी वेरी नहीं करेगा. For one geometrical figure of a circle, it will not vary at all. Has everybody understood this? Now, अब देखो, to
आइडेंटिफाई अ यूनिक सर्कल। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। टू आइडेंटिफाई अ यूनिक सर्कल ना, उसके लिए 3 कंडीशन है। आई कैन से दैट टू आइडेंटिफाई यूनिक सर्कल we need 3 conditions. To identify a unit circle we need 3 conditions. ठीक है, यूनिक सर्कल अलग, सबसे अलग थोड़ा। अब मेरा 3 कंडीशंस क्या होता है, ठीक है। एंड अब 3 कंडीशंस में मतलब बेसिकली ना आई कैन से दैट ये 3 कंडीशंस दे आर नथिंग बट दे आर दीज 3 अननोन वेरिएबल्स। Can anyone tell me which are these 3 unknown variables? Standard circle तो मुझे पता है, standard circle में there is nothing called as an unknown variable. Standard equation of a circle is x square plus y square equal to a square. ये होता है मेरा standard equation of a circle. If I have to give this to you, कि standard equation of circle, my standard equation is x square plus y square equal to a square या r square. Center radius form में हम लोग ऐसे लिखेंगे x minus 0 the whole square plus y minus 0 the whole square equal to a square. where the center is 0, 0, which is nothing but, अब मैं x minus 0 क्यों लिखूं? x minus 0 is nothing but x square, y minus 0 is nothing but y square, and a minus obviously a minus 0 नहीं लेते, that is the radius. अब यहाँ पे अगर मुझे ये बोला है कि I have there are 3 unknown constants, 3 unknown variables है, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे पता है कि this is talking largely about the general form. Can anyone tell me what is the general form? X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is called as a general form. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. But यहाँ पे तो लोग कुछ बोल रहे हैं कि तेरा 3 अननोन वेरिएबल्स, तो ये तो जनरल फॉर्म हो गया मेरा। Now let's think about what we did last time. हमने नहीं किया था सर्कल्स के पहले स्ट्रेट लाइन्स। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन दैट वी डिड इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स? कोई बताएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स का इक्वेशन क्या था? ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Now this is called as my equation in pair of straight line जो हमने किया था, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. अब मुझे एक बात बताओ, when will this equation, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, when will the above equation represent a circle? बताओ, when will the above equation represent a circle? सबसे पहला ऑब्वियस कंडीशन क्या रहेगा वो बताओ। उसके पहले एक ऑब्वियस कंडीशन है, a is equal to b. The first condition is that coefficient of x square should be equal to coefficient of y square. नहीं समझा? Because for any equation of circle it is x square plus y square. It can be 3x square plus 3y square. It can be 10x square plus 10y square. My coefficient of x square and coefficient of y square should be same. If it is not same, it is never going to represent the standard form or the general form of a circle. तो मुझे पता है that coefficient of x square and coefficient of y square should be same. Anybody has any doubts here? अच्छा अब बताओ next condition क्या रहेगा? Coefficient of xy should be 0. तो अब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे सर्कल में कभी भी xy नहीं आना चाहिए। It because it should be
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड ऑलवेज बी जीरो। मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एच कुछ भी रहने तो इट हैज टू बी दिस, इसका कोएफिशिएंट शुड बी जीरो। तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट हमेशा जीरो रहना चाहिए। अब मैं ना ये पूरा चीज, मुझे दोनों चीज याद रखना कि सबसे पहला कंडीशन है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू जीरो। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स हियर? अब अगर मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो रहेगा, सो इट विल रिप्रेजेंट लाइक दिस। समझो, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, थिंक ऑफ इट एज लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, ये इक्वेशन में हम लोग दो चीज चेक करेंगे। गाइस, क्या मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सेम है? क्या मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो है? ऑफ कोर्स। तो आई विल कंपेयर इट नाउ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी सेम। अच्छा, कोई बताएगा मेरा 2g का वैल्यू क्या है? फिर 2g इज 2, तो g इज 1। कोई बताएगा 2f का वैल्यू क्या है? 2, तो f का वैल्यू क्या है? 1। एंड what is the formula for the center? Minus g comma minus f. What is the formula? Minus g comma minus f. कोई बताएगा रेडियस तो क्या सेंटर क्या रहेगा बताओ? -1 comma -1। रेडियस का फॉर्मूला बताओ? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बोलो क्या रहेगा? बोलो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू रूट। क्या हुआ? Now, so radius will become √3. My center is -1, -1 and my radius has become √3. Anybody has any doubts here? अब आता है रेडियस से कंडीशंस। अब रेडियस क्या बोलता है? एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट कैन, अच्छा चलो आई विल आस्क पहले। नाउ what can you say if g square plus f square minus c is greater than 0? What can anybody say that कि अगर मेरा g square, देखो ये फॉर्मूला है g square plus f square minus c, which is nothing but radius का ही है। What can you say if this is greater than 0? What can you think about it? बोलो बोलो। Lies on the x-axis. रियल सर्कल, चलो ठीक है, सर्कल एग्जिस्ट करते हैं कि रियल सर्कल ऑब्वियसली ना इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 ओनली, बिकॉज रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो अगर दिस इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब रियल सर्कल विथ, अच्छा कैन एनीवन से व्हाट कैन यू सी एज रेडियस? कि रेडियस तो पता है कि इट विल बी विथ फाइनाइट रेडियस, फाइनाइट नॉन जीरो फाइनाइट रेडियस। चलो कोई बताएगा नेक्स्ट कंडीशन, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, व्हाट काइंड ऑफ सर्कल? एक वर्ड सिर्फ मेंशन कर देना, रियल पॉइंट सर्कल। ठीक है, रियल पॉइंट सर्कल। ठीक है, अच्छा लास्ट पार्ट, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, इमेजिनरी सर्कल। एनीथिंग एल्स? आर्गन प्लेन। व्हाट कैन यू से अबाउट द सेंटर? चलो इमेजिनरी सर्कल, तो वो लिख लेते चलो।
तो उन्होंने बोला, बराबर बोला गाइस, इमेजिनरी सर्कल। अच्छा, व्हाट कैन यू से अबाउट द सेंटर? व्हाट कैन यू से अबाउट द सेंटर? विल इट बी अ रियल सेंटर और इमेजिनरी सेंटर? सेंटर रियल होगा, याद रखो, विथ रियल सेंटर। हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो इमेजिनरी सर्कल विथ रियल सेंटर। अगर मेरे इक्वेशन में इमेजिनरी नहीं है कोई वैल्यू, ऐसा नहीं दिया ना, 2IG(x) नहीं दिया, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सो व्हाट कैन आई से दैट इट इज इमेजिनरी सर्कल। सबसे पहला, अगर ग्रेटर है, ग्रेटर तो ऑब्वियसली ग्रेटर ही होना चाहिए, तो रियल सर्कल विथ फाइनाइट रियल रेडियस, नॉन जीरो रेडियस। नॉन जीरो मतलब ये जीरो हो सकता है, तो g² + f² - c अगर जीरो है, इट इज रियल पॉइंट सर्कल। और लास्ट में अगर लेस देन जीरो, तो इट इज इमेजिनरी सर्कल विथ रियल सेंटर। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तो याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल having lines 2x - 3y = 5 and 3x - 4y = 7 as diameter and whose area is 154 स्क्वायर यूनिट्स। चलो, मैंने क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग लाइन्स। अब दो लाइन दिया है, दो डायमीटर, एंड आई होप एवरीबडी नोज दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अच्छा, कोई बताएगा डायमीटर कहाँ से पास होता है? वेरी गुड। कितना डायमीटर्स दिया है? दो। दोनों कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से। और कुछ तो दिया है, क्या दिया है? किसका एरिया? सर्कल। सर्कल का एरिया कितना है? डू वी नो द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सर्कल? πr²। कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ठीक है, बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? फाइंड द सेंटर। हाउ विल आई फाइंड द सेंटर? टू फाइंड सेंटर, अब दो डायमीटर है तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। 2x - 3y = 5, 3x - 4y = 7। बोलो क्या करो? किसको किससे मल्टीप्लाई करो? चलो बताओ। फर्स्ट इक्वेशन बाय 4, सेकंड इक्वेशन बाय 3। बोलो क्या हो जाएगा? 8x - 12y = 20। नेक्स्ट, माइनस इक्वल टू, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो? सब्ट्रैक्ट, ऐड, सब्ट्रैक्ट। निकल गया? बोलो क्या बचेगा? अगर x 1 हो जाएगा तो y का वैल्यू बताओ, डायरेक्ट बताओ y का वैल्यू। -1। तो गाइज मेरा सेंटर क्या हो गया? तो सेंटर हैज बिकम 1, -1। चलो सेंटर तो हो गया, आप क्या करेंगे बताओ? रेडियस कैसे निकालेंगे? कुछ तो दिया है ना। एरिया तो सर्कल कितना है? 154, बराबर। तो क्या लिखूं फिर? πr² = 154। बोलो क्या करेंगे? टेक πr/22/7। वेरी गुड। 22/7 इंटू r² = 154। अगर तुम ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से, तो r² कितना हो जाएगा? बराबर। ठीक है, r7 ले लेंगे। तो बोलो अब मेरे पास क्या, मेरे पास सेंटर है क्या, मेरे पास रेडियस है? कौन सा इक्वेशन करेंगे? बोलो क्या लिखो, डायरेक्ट बताओ क्या लिखो? x -
1 the whole square plus equal to, so this is the equation of circle. कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करके सेंटर फाइंड आउट किया. रेडियस में, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए मुझे दिया था कि 154 है, दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर करके आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज 7. And this is my center and this is my radius. Has everybody understood this? And if you have the center and radius, you can use center radius form, that is x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square, where center का coordinates are taken as h comma k and this is the radius. Anybody has any doubts here? Has everybody understood this? So this is a very nice easy sum. चलो, find equation of circle which passes through 2,3 and center lies on x axis, radius equal to 5. अब बताओ, मुझे बताया है कि ऐसा, चलो मैं थोड़ा, विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट. बिफोर आई प्लॉट, कैन एनीवन टेल मी 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? वेरी गुड. अब बोला है सेंटर लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस. Can anyone tell me what do you understand by center lies on the x-axis? Very good. Anything else that you can put light? तुमने बराबर बोला. Y coordinate 0. Lovely. Anything else? If you can be more specific about it. क्या बोला है? Center lies on the. सोचो ना. What do you understand by center lies on the x-axis? X-axis का कितना पार्ट है? X-axis is divided into 2 parts. Actually 3 parts. 0 का हम काउंट नहीं करते हैं. अगर x-axis पे लाई कर रहा है तो there is a possibility कि it might lie on the positive side or it might lie on the negative side. Yes or no? कौन सी साइड में लाई कर रहा है? We don't know. So it may lie on the positive side or it may lie on the negative side. I'll give you an example. देखो, डायग्राम बनाते हैं. समझो मैंने एक ऐसा ले लिया. समझो ये है मेरा 2,3. Imagine this is your 2,3. समझो, and this is your center. Okay. अब मैंने दूसरा डायग्राम बनाया. दिस इज योर सेंटर बड़े सर्कल का, और ये मेरा लाइन रहेगा. तो सेंटर यहाँ पे भी आ सकता है, सेंटर यहाँ पे भी आ सकता है. दोनों सर्कल पास कर रहे हैं 2,3. यहाँ पे 2,3 लिख लेता हूँ मैं. अब दोनों का रेडियस 5 हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? देखो ये भी रेडियस 5 है, ये भी रेडियस 5 रहेगा, ये भी रेडियस 5 रहेगा. अब ये अगर ये रेडियस 5 है, रेडियस 5 है, देखो ये भी 5 हो सकता है. दिस इज ऑब्वियसली, दिस कैन बी 5, ऑब्वियसली दिस कैन ऑल्सो बी 5, इट कैन बी एनीथिंग. सो वी आर नॉट अवेयर ऑफ एग्जैक्टली what is it, but we know that it is passing through 2,3. Now since we know that it is lying on the opposite side, yes बोलो guys, क्या करेंगे हम लोग? How can we proceed? अब सुनो, तुमने क्या बोला मुझे? सेंटर क्या है?
x, 0. कैन आई टेक द सेंटर एज h, 0? अब देखो गाइज, अगर मैंने सेंटर ले लिया h, 0, ठीक है, सेंटर ले लिया h, 0। अब अगर h, 0 दिया है मेरे पास, मैंने ले लिया ऑब्वियसली h, अब h क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, वी हैव नो आइडिया, बट h इज h। अगर मुझे ये दिया है एंड माई इक्वेशन इज दिस, यहां पे देखो x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये पॉइंट भी दिया है 2, 3, so I can write it as 2 minus h the whole square plus 3 minus 0 the whole square equal to something. Can you tell me what will be the radius? Radius दिया है, क्या है radius? 5 square. तो this will become, बोलो क्या हो जाएगा, 4 plus h square minus 4h plus 9 equal to 25. बोलो क्या हो जाएगा, h square minus 4h, बोलो 9 plus 4 13, 13 minus 25 minus 12, बोलो फैक्टर्स बताओ जल्दी, h minus 6 h plus 2 equal to 0, तो बोलो h का वैल्यू क्या रहेगा, -2 और h is equal to 6। तो 2h का वैल्यू मिल गया। तो अब पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, बताओ। So therefore the equation of circle will be, अगर मैंने h ले लिया, so it will become x minus -2 the whole square plus y minus 0 the whole square equal to 5 square। मतलब this can be written as x plus 2 the whole square plus y square equal to 25। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब तुमको अगर एक्सपांड करना है तो लिख दो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 25 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन जब 6 है, सो सेकेंड इक्वेशन इज सेकेंड इक्वेशन विल बिकम x minus 6 the whole square plus y minus 0 the whole square equal to 5 square। तो x square plus y square minus 12x। अब this is 36, 36 minus 25, how much is 36 minus 25 plus 11 equal to 0। Has everybody understood this? तो देखो दो इक्वेशन आ गया, it is representing two different circles। तो ये बात याद रखो, अगर बोला है कि इट इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड नहीं बोला है, तो यू आर सपोज टू कंसिडर बोथ द थिंग्स। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल बट इट इज लाइंग ऑन बोथ द थिंग्स। नाउ चलो लास्ट सम फॉर द डे, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। concentric with 3x square plus 3y square minus 5x minus 6y minus 14 equal to 0 and whose radius is equal to the radius of x square plus y square equal to 49। चलो, you guys will tell me step by step approach। बोलो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तुम लोग के हिसाब से क्या करना चाहिए? फाइन सेंटर, फाइन सेंटर के पहले कुछ तो करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर सेम है, सेम होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए वो? इट शुड ऑलवेज बी
1. Remember this. I was waiting for this sum. So remember this when you write this. इसलिए ना यहाँ पे लिखा है, देखो ये लिखा है, यहाँ पे equal to 1 लिखना है. Always remember it. Even they are equal, you have to make sure that it is always equal to 1. तो अब अगर ये सम में देखेंगे तुम लोग, now tell me what should be the first step, guys. अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो what will this become? x square plus y square minus 5x by 3 minus 2y minus 14 by 3 equal to 0. अब बताओ इसको किससे कंपेयर करेंगे? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. बोलो what is g का वैल्यू? डायरेक्ट बताओ. माइनस. वेरी गुड. what is f का वैल्यू? -1. what is c का वैल्यू? -14 by 3. वेरी गुड. ठीक है, पक्का ना? सेंटर का फॉर्मूला बताओ क्या रहेगा? -g, -f. तो क्या रहेगा सेंटर? 5/6, -1 की 1. चलो रेडियस बताओ क्या है? क्वेश्चन पढ़ो ना. whose radius is equal to the radius of this. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसका रेडियस क्या है? तो क्या रहेगा रेडियस? 7. तो अब बताओ इक्वेशन क्या रहेगा? x माइनस सेंटर रेडियस हो गया x माइनस 5/6 द होल स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू. ओके, एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? सो सेंटर रेडियस फॉर्म कॉन्सेंट्रिक भी है. ठीक है, चलो होमवर्क फॉर यू गाइस. ये एक सब होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. हिंट दूंगा मैं. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. पासिंग थ्रू a3, 4 b -3, -4 c 0, 5. I'll give you a hint for this, guys, so that you get clarity as to how you're supposed to solve this. ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, इसको मैंने ले लिया 3, 4. ये मेरा सेकेंड पॉइंट है -3, -4. मेरा लास्ट पॉइंट है दैट इज 0, 5. ये मैंने ले लिया सेंटर. इसको ले लिया h, k. हाउ कैन वी सॉल्व दिस सम? इसको a ले लिया, इसको b ले लिया और इसको c ले लिया. हाउ कैन वी स्टार्ट विद दिस सम? तीनों पॉइंट किस पे? सो कैन आई से दैट CA इज इक्वल टू, इसको D ले लो, CB इज इक्वल टू CD. अरे yes or no? How will you solve CA? Distance formula. How will you solve CB? Distance formula. How will you solve CD? Distance formula. अब कुछ नहीं करना है तुमको, पहले करना है CA इज इक्वल टू CB और उसके बाद ले लो CA इज इक्वल टू CD. तुम लोग दो इक्वेशन, तुम लोग को एक्चुअली देखो, जैसे तुम लोगों ने CA निकाला, CB निकाला और CD निकाला, 3 इक्वेशन मिल गया. अब फर्स्ट दो को इक्वेट करो. अच्छा, कैन वी इक्वेट CA इज इक्वल टू CB? व्हाट इज द कंडीशन? व्हाई कैन वी इक्वेट CA इज इक्वल टू CB? रेडियस. तो पहले CA इज इक्वल टू CB को इक्वेट कर लिया, एक इक्वेशन आ गया. CA इज इक्वल टू CD कर दिया, दूसरा इक्वेशन आ गया. अब दोनों इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग? साइमल्टेनियसली. उससे क्या मिलेगा मुझे? H and K. एंड H and K इज नथिंग बट योर सेंटर. सेंटर मिल गया, सेंटर मिल गया, अच्छी बात है. अब कोई भी एक पॉइंट से ऑब्वियसली 0,5 से डिस्टेंस निकाल दो, दैट इज बिकम द रेडियस. Hence you have the center and the radius. Has everybody understood this? So this one sum we'll be discussing in the next class. Chalo, we'll stop for today.